اگر میں آپ کو ایک اورنج دوں اینڈ آئی جسٹ آسک یو ٹو اسکویز اٹ، وٹ ڈو یو تھنک اس میں سے کیا باہر آئے گا؟ پرابیبلی یور آنسر وڈ بی اورنج جوس. اینڈ وٹ ایف آئی آسک یو کہ اس میں سے ایپل جوس باہر آ سکتا ہے؟ سو پرابیبلی یور آنسر وڈ بی کہ دیٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ اس ایک اورنج ہے، اورنج میں سے اورنج جوس ہی آ سکتا ہے، ایپل جوس کیسے آ سکتا ہے؟ سیم از ود اس. ہمارے اندر جو کچھ ہوتا ہے، دا سیٹ آف بلیوز، دا سیٹ آف تھاٹس، اسی کے اکارڈنگلی ہم ایکٹ کرتے ہیں. اگر ہمارے اندر پازیٹیوٹی ہے تو ہمارے بیہیویئر میں پازیٹیوٹی ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر آپ کے اندر نگیٹیوٹی ہے تو آپ نگیٹیو بیہیویئرز ہی کریں گے، اپنے سراؤنڈنگز میں نگیٹیوٹی کو لے کر جائیں گے، آپ نگیٹیوٹی سے دوسروں کو بھی انفلوئنس کریں گے، اینڈ سو مچ سو کہ آپ اپنے لیے اٹریکٹ بھی نگیٹیوٹی کر رہے ہوں گے. جیسے ایک اورنج سے صرف اورنج جوس آتا ہے، ویسے ہی ہمارے اندر سے بھی ان اینی سچویشن، ان اینی سرکمسٹانس وہی آ رہا ہوتا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے. ہم اپنی انٹرنل پروسیسز، تھاٹس اور بلیفس کے اکارڈنگلی ہی ہر سچویشن کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. آئی ایم Tahira Javaid. I'm a consultant psychologist and a hypnotherapist. I've been practicing in Rawalpindi in Islamabad for past 10 years now. This video is brought to you by Pehchan Clinic, which aims to provide mental health consultancies online and in clinic both. It also intends to provide mental health awareness and help destigmatize the concerns related to mental health by providing online resources and by holding focus group discussions and workshops. I'm also affiliated with Institute of Medical Rehabilitation and Integrated Health Services Children and Family Hospital, Islamabad. This month, we would be talking about depression, bullying, and positive thinking. We would be linking all these three because in our practice, we have noticed that sometimes depression is caused by bullying and it can be coped up by enhancing and building up the habit of positive thinking. So, like and subscribe to our channel and click the notification bell to stay checked in with your mental health, and our social media handles would be linked in the description box below. So let's see what do we have for you in the current video. For example, اگر میں اپنے بارے میں یہ سوچتی ہوں کہ میں بالکل کانفیڈنٹ نہیں ہوں، میرے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا، آئی ایم ناٹ گڈ انف، تو کسی بھی سچویشن میں کام کر بھی نہیں سکوں گی. میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی میرے کام کو اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے، ایکنالج نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں خود ہی نہیں کری. میں خود اس طرح کا بیہیویئر شو کر رہی ہوں کہ جس کی وجہ سے میرے کام کی اکنالجمنٹ یا اپریسیشن بھی نہیں ہو سکتی. بٹ اگر آن دی ادر ہینڈ میں خود بہت کانفیڈنٹ ہوں اور میرے اندر یہ تھاٹس چل رہے ہیں کہ یس آئی کین ڈو اٹ، آئی ڈو ہیو دی ایبلٹی، آئی ڈو ہیو دی کیپیبلٹیز اینڈ آئی کین ڈو اٹ، تو آٹومیٹیکلی میرا بیہیویئر پازیٹیو ہوگا، میں بہت کانفیڈنٹلی کام کروں گی. تو جو ارد گرد میرے لوگ ہیں وہ بھی اس کو اپریشیٹ اور اکنالج کریں گے. سو دیٹ مینس واٹ از ان سائڈ us will actually determine how we feel and how people around us will feel. For example, اگر ہم ایک چھوٹے سے اسمائل کی بات کریں، a smile can change the world of people around us as well. That reminds me of one of the incident. There was an occasion where my driver wasn't available and I had to book a taxi. So hum taxi mein baithe, I and one of my friend, we went to a place and we were all talking about like different things. Hum aapas mein baat kar rahe the and we didn't notice ke surroundings mein kya ho raha hai. We just told the taxi driver کہ ہمیں کہاں جانا ہے and he dropped us, we paid and left. After a month, approximately a month, we got another chance جہاں پر ہمیں دوبارہ ٹیکسی بک کرنی تھی. Fortunately ہم وہی ٹیکسی ڈرائیور ہمیں مل گیا جو ہمیں پہلے ملا تھا and he recognized us and he was like, the other day you changed my day. And we were like, کیسے؟ He said کہ آپ دونوں جب آ کے ٹیکسی میں بیٹھے تھے you didn't realize, but آپ لوگ ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، you were enjoying life. اس دن صبح جب آپ لوگ اتر کے چلے گئے, the whole day, because when you were smiling and talking about happiness and pleasant moments of your life, I thought کہ یہاں ابھی بھی اتنی پازیٹیوٹی موجود ہے، یہ لوگ ابھی بھی لائف انجوائے کر رہے ہیں. That actually gave me the feeling of positivity throughout the day. اور اس دن میرا پورا دن بہت اچھا گزرا، بہت پازیٹیو لوگوں کے ساتھ گزرا. مجھے ایسے لگا کہ بس ہر طرف ہیپینس ہی چل رہی ہے.
So you changed my life. And when he told me about this, I stopped for a moment and thought कि यार हमारे smile से how can, like, if we were happy, we were smiling, how can someone's day be changed, how would someone's life be affected? And that gave me a very positive realization. That day we were positive, we had so much good things to talk about, we were happy, so we reflected that in our behavior, and that was the reason कि उस बंदे की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो रही थी, उस बंदे की लाइफ अफेक्ट हो रही थी. which again actually gave me the realization कि अगर हम पॉजिटिव होते हैं तो हम अपने अलावा बाकियों की लाइफ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. जिसके बाद मैंने ये पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर काम शुरू किया, एंड आई थॉट कि जो प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग मैंने अडॉप्ट किया, आई मस्ट शेयर इट विद यू पीपल एज वेल. क्योंकि हमें जनरली ये बहुत बार पूछा जाता है कि हमें बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम पूरा दिन नेगेटिव सोचते रहते हैं, हमें सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स आते हैं, वी आर थ्रू आउट द डे वी आर रिमिनिसाइजिंग अबाउट आवर थॉट्स एंड ऑल. सो कैसे उसको ओवरकम करें? लोग तो नॉर्मली कह देते हैं तुम बुरा ना सोचा करो, तुम इस तरह ना किया करो, बट हाउ टू डू इट? सो देयर आर सर्टेन वेज दैट यू कैन अडॉप्ट. अब ये हम कैसे करते हैं कि हम बार बार अपने थॉट्स को फ्लिप करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव. पूरा दिन हमें अपने थॉट्स के लिए वॉचफुल होना होता है. जितना ज़्यादा हम थॉट्स को बार बार चैलेंज करते हैं, फ्लिप करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव, उतना ही द नेगेटिव थॉट्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम होती जाती. इट्स अ प्रोसेस. ओवर द डे या ओवर द नाइट कुछ भी नहीं हो सकता. हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली ये प्रोसेस लेकर चलना है, बिकॉज हर इंडिविजुअल में जो थॉट्स होते हैं, दोज थॉट्स आर एक्चुअली लीडिंग टू आवर इमोशंस. इमोशंस आर डिटर्मिनिंग आवर फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी से हमारा बिहेवियर डिटर्मिन होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सिचुएशन में आई वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट, लेकिन मैं सारा दिन कह रही हूँ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, तो मैं एंग्शियस हो जाऊँगी, फेयरफुल हो जाऊँगी. उसकी वजह से मेरा इन सिचुएशन फिजियोलॉजी कैसे इफेक्ट होगी? शायद मुझे हाइपर वेंटिलेशन हो जाए, शायद मुझे शिवरिंग स्टार्ट हो जाए, मेरी आवाज़ बंद होना शुरू हो जाए, पैल्पिटेशंस हो, कुछ भी हो सकता है फिजिकली. और उसकी वजह से बिहेवियर क्या होगा कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, जो मैं करना चाह रही थी, जो मेरी कैपेबिलिटी थी, वो ब्लॉक हो गई और अब मैं वो कर ही नहीं पा रही जो मुझे करना था. अगर ऑन द अदर साइड मेरी थॉट्स पॉजिटिव हैं तो सारा प्रोसेस जो है वो वाइस वर्सा चलेगा. थॉट्स पॉजिटिव हैं, यस आई एम कॉन्फिडेंट, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और रिलैक्सेशन रहेगी, रिलैक्सेशन की वजह से मेरी फिजियोलॉजी काम रहेगी, और व्हेन आई एम काम तो ऑटोमेटिकली आई विल बी परफॉर्मिंग वेल, राइट? So when we know that thought is the driving force towards our behavior, if thoughts are good, I am good. So that means I have to develop, I have to work on myself in terms of strengthening my positive thought. So now that we know how important these positive thoughts are, let's look into the process. It's a 5-step process. 1, we have to reflect. 2, accept. 3, define. 4, design. And 5, review. It's a 5-step process that we would be discussing in detail that will actually enable you to think positive and to have a positive mind. Okay, let's look at the first step, which is reflection. What is reflection? You have to stop for a while and you have to think. सारे अपने जो थॉट्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करें, उनके बारे में सोचें और उनको लिस्ट डाउन करें. फॉर एग्जाम्पल कि आपको अपने बारे में कैसे थॉट्स आते हैं, लोगों के बारे में, सिचुएशन के बारे में. आस्क दीज 3 simple questions to yourself. How do you feel about yourself? What do you think about yourself? What do you think about people around you? What do you think about this situation? Different situations को माइंड में लेकर आएं कि अगर लेट्स सपोज मैं किसी को कॉल कर रही हूँ और वो कॉल नहीं उठा रहा, तो व्हाट्स द फर्स्ट थॉट इन माई माइंड? अगर मैं एक काम कर रही हूँ और वो काम मुझसे ठीक नहीं हो रहा, तो व्हाट्स द थॉट इन माई माइंड? So that you can have a track of all the thoughts and mindsets you have. जितने thoughts भी आपको आ रहे हैं सिचुएशन, लोगों और अपने बारे में, just write them down and then divide them into categories. उनको define करें. कौन से thoughts हैं जो positive हैं, कौन से thoughts हैं जो negative हैं. Why is it important? Because negative वाला जो आपका set of thoughts है, इस पूरे process में आज जो वीडियो है उसमें हम सारा काम negative वालों पे करेंगे.
नाउ यू वुड सी कि जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स अपने रिफ्लेक्ट करके नोट डाउन कर रहे होंगे तो बेसिकली आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ चीज़ें आपके अपने अंदर से आ रही हैं, कुछ लोगों की वजह से आ रही हैं, मे बी कुछ लोगों के साथ बुलिंग है जिसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों को किसी सिचुएशन ने लेट डाउन कर दिया है, कुछ लोगों ने लेट डाउन किया है, कुछ हमारे अपने बिलीव्स हैं जो कि पास्ट से आ रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस से आ रहे हैं. सो वो सारी चीज़ें, बेशक वो कॉन्सिक्वेंस है आपके किसी प्रॉब्लम का, वो डिप्रेशन की वजह से है, क्योंकि डिप्रेशन में जनरली नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं. सो वो नेगेटिव थॉट्स डिप्रेशन की वजह से हैं, अगर आपने बुलिंग फेस की उसकी वजह से हैं, या किसी भी और सर्कमस्टांस की वजह से हैं. टुडे इन दिस होल वीडियो वील बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स. दैट डजंट मीन कि हम पॉजिटिव को बिल्कुल इग्नोर कर दें. पॉजिटिव इस वीडियो में इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी उन थॉट्स को पॉजिटिव में ही लेकर चल रहे हैं. सो द इम्पॉर्टेंट वुड बी द नेगेटिव सेट ऑफ थॉट्स जिन पे हमने काम करना है. सो वंस यू आइडेंटिफाइड योर थॉट्स, now the second process is to accept. Now this acceptance is about acceptance of your thought, acceptance of the outcome of the situations. Acceptance of thoughts का क्या मतलब है? Like आपके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं. We cannot deny कि नहीं मैं तो नेगेटिव नहीं सोचता, मेरे अपने बारे में तो कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, ये लोगों की वजह से होता है, ये उसकी वजह से होता है, वो ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा. अगर हमारी ये थॉट्स हैं कि वो ठीक हों तो हम ठीक हो जाएंगे, in that case हम अपने लिए पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप नहीं कर सकेंगे. बिकॉज व्हाट वी कैन डू इज टू वर्क ऑन आवरसेल्फ. अगर मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर जाऊँ और मेरे पाँवों को कुछ ना हो, वो हर्ट ना हो, तो मैं शूज़ पहन के जाऊँगी इंस्टेड कि मैं बाहर पूरा कारपेट कर दूँ. दैट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू बी पॉजिटिव एंड आई वॉन्ट कि सिचुएशंस अराउंड मी दे शुड नॉट अफेक्ट मी और आई शुड बी स्ट्रांग इनफ, तो आई विल बी वर्किंग ऑन माई सेल्फ. हाउ कैन आई आस्क अदर्स कि वो सब ठीक हो जाएं तो मैं ठीक हो जाऊँगी, राइट? So accept that whatever effort has to be put in is actually from my side. I would work on myself. I would work on my negative thoughts. जो नेगेटिव मैंने आइडेंटिफाई किया वो लोगों के बारे में है, वो मेरे बारे में है, या वो सिचुएशन के बारे में. Accept the fact that I have to work on myself. And then to accept the outcome. For example, अगर मैं कोई भी एफर्ट करूँगी तो हो सकता है कि वो पॉजिटिव में ही जाए या वो नेगेटिव में भी जा सकती है. मैं पास भी हो सकती हूँ, मैं फेल भी हो सकती हूँ. बट जस्ट रिमेंबर, एक्सेप्टिंग द आउटकम डजंट मीन कि आप ओवरलुक कर जाएंगे प्रॉब्लम्स को, आप ओवरलुक कर जाएंगे किसी भी चीज़ को. हम पॉजिटिव आउटकम और नेगेटिव आउटकम दोनों के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने एक्सेप्टेंस इसीलिए करनी है कि अगर वो बुरा भी है तो मुझे दोबारा उसके ऊपर एफर्ट करनी है. मैं दोबारा खड़ी होंगी, दोबारा शुरू कर दूंगी. और अगर वो पॉजिटिव आउटकम है तो इट्स ओके, वो तो फिर मेरी जितनी एफर्ट्स थी वो कामयाब हो गई. सो रिफ्लेक्ट करने के बाद, वन, you have to accept about that you have to put in the effort. You have that negative mindset, mind beliefs आपके नेगेटिव हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उनको ठीक करना है. और मेरी एफर्ट से या किसी भी सिचुएशन में जो भी आउटकम आएगा मुझे उसको एक्सेप्ट करके अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना होगा कि मैं कैसे आगे जाऊंगी. मुझे किसी भी सिचुएशन में हारना नहीं है, राइट? नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड स्टेप, डिफाइन करना है. अब देखें, मेरे माइंड में अगर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं तो मैं सारे थॉट्स को एकदम से ठीक नहीं कर पाऊंगी. आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट एज वेल कि मुझे वन स्टेप एट अ टाइम लेना है. डिफाइनिंग में हम वन स्टेप एट अ टाइम की बात करें. In this step, we'll be talking about defining one step at a time. देखिए, अगर बहुत सारे थॉट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो हम सबको इकट्ठा लेकर नहीं चल सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो जाएंगे हम. सो व्हाट वील डू इज़, हमने जितने भी थॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में हम लिस्ट डाउन करेंगे. कैटेगरीज कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कुछ थॉट्स मेरे कॉन्फिडेंस के बारे में हो सकते हैं, कुछ सेल्फ एस्टीम के बारे में हो सकते हैं, कुछ एबिलिटीज़ के होंगे, कुछ रिलेशनशिप्स के होंगे. सो हम सारे थॉट्स को कैटेगराइज करेंगे और एक कैटेगरी को लेकर चलेंगे. सेकेंडली, एक कैटेगरी डिफाइन की. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस वीडियो वी कैन टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम को ले लेते हैं. अब कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम जो बहुत ज़्यादा हमारी लो हो जाती है बिकॉज ऑफ नेगेटिव थॉट्स, हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? अभी एक बहुत ब्रॉड टर्म है ना, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम मुझे किसी भी सिचुएशन में चाहिए हो सकती है. उसको मुझे ऑपरेशनली डिफाइन करना है इन दिस स्टेप कि कैसे चाहिए. लाइक आस्क योरसेल्फ, हाउ डू आई वांट टू बी कॉन्फिडेंट, इन व्हाट सिचुएशंस आई वांट टू बी कॉन्फिडेंट, वेयर वुड आई यूज दिस,
how do I want to feel about myself by being confident. That when you would answer these questions, this will actually allow us to have a statement. I want to be confident in, for example, in our annual or in our monthly meetings. How? ये तो हो गया कि कहाँ पर चाहिए, right? How do I want to be confident? I want to be confident in our monthly meetings so that I can express my opinions. Okay, that means मुझे ये भी पता चल गया कैसे. But then how do I want to feel? I want to be confident in our monthly meetings to express my thoughts and opinions in a very relaxed way. That means relaxation is the feeling जो मुझे चाहिए. Now it is clearly defined कि मैंने अपने उन सब थॉट्स पे काम करना है जो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं लेने दे रहे, मुझे एंग्शियस करते हैं और मुझे रोकते हैं कि मैं अपने आप को ओपनली एक्सप्रेस कर सकूं इन मीटिंग्स के अंदर. देखिए, इन एवरी मीटिंग बहुत सारे व्यूज़ होते हैं, कभी आप एग्री करते हैं, कभी डिसएग्री करते हैं, कभी आपको कोई पॉइंट अपना एक्सप्लेन करना पड़ता है. सो I want to be confident there, to be more expressive, to express my thoughts and views, and to be relaxed at the same time. So this is my goal. Now, once I have defined, I have to design. The fourth step would be to design a strategy. यहाँ तक तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरे थॉट्स हैं, इस तरह से मुझे एक्सेप्ट करना है उनको, ये मेरी डेफिनेशन है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है. गोल सेटिंग के बाद डिजाइनिंग a strategy. How would I do that? It's a 6-step process again. कौन कौन से ways हैं जिनमें मैंने डिजाइन करना है? 1. Optimism. I have to be optimistic about situations. कि मैं जो भी एफर्ट्स करूँ, अगेन देखें, अगर मैं पूरा यही सोच रही हूँ मेरे सब एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो सकती, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो क्या सोचेंगे, मैं कैसे ओपिनियंस दे रही हूँ, और मैं अगर बोलूँगी तो मुझसे बोला ही नहीं जाएगा. सो आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ एज वेल एज अदर्स, और मैं अपने कॉन्फिडेंस को खुद ही शाटर करती जा रही हूँ. मुझे ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि एवरी एफर्ट दैट आई विल पुट इन will actually help me towards confidence. I can do it. मैं monthly meetings में बहुत अच्छा बोलूँगी, मैं अपने opinions को express कर सकती हूँ, मैं सारी बात अपनी कर सकती हूँ, अपने thoughts share कर सकती हूँ, और लोग भी उसको appreciate और understand करेंगे. What I'm doing is I'm being optimistic about a situation that I have to face, right? यहाँ पर I would not be ignoring the negatives. ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दूँगी. बट ऑप्टिमिज्म क्या है? ऑप्टिमिज्म ये है कि देयर इज फीडबैक. जो भी वो कहेंगे वो सब फीडबैक होगा. इट वुड नॉट बी फेलियर. हमें ऐसे लगता है कि अगर जो है वो किसी भी सिचुएशन का आउटकम अगर नेगेटिव आ गया, या उन्होंने मुझे मेरे ओपिनियन से एग्री या डिसएग्री कर दिया, डिसएग्रीमेंट में वो बुरा हो गया, पेसिमिज्म में चले गए हम. ऐसा नहीं होता. Everyone is entitled to their opinion, right? So अगर वो मेरे ओपिनियन से डिसएग्री भी करें तो इट्स अ फीडबैक फॉर मी. इट वुड नॉट बी अ फेलियर. अगर मैं अपने आप को इस तरह ऑप्टिमिस्टिक रखूंगी तो ऑटोमेटिकली मैं रिलैक्स रहूंगी और मेरा कॉन्फिडेंस बेहतर रहेगा. सो ऑप्टिमिज्म के बाद द सेकेंड स्टेप वुड बी एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टिंग द आउटकम्स. मेरी सारी एफर्ट्स के रिजल्ट में जो भी सिचुएशन होगी मैं उसको प्रॉपरली पॉजिटिवली ही लूँगी और अपनी एफर्ट्स को दोबारा डिफाइन करूँगी, अपने एफर्ट्स को दोबारा फॉर्मुलेट करूँगी. देन इज रेजिलियंस. रेजिलियंस क्या है कि मैं अगर एक सिचुएशन में लेट डाउन हो गई या मुझसे काम नहीं हुआ, द एफर्ट टू गो बैक अगैन एंड डू इट. अपने आप को दोबारा उठाना है. वो कहते हैं ना, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग. तो क्या होता है, जंग में गिर गए तो दोबारा उठना नहीं है, उठना होता है. इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस में अगर हम बार बार उठ सकते हैं, असल में फेलियर ये है कि मैं डर के बैठ जाऊं और मैं दोबारा नहीं उठूं. अचीवमेंट तो ये है कि मैं उठ जाऊं और दोबारा शुरू करूं. इफ़ यू लुक टुवर्ड्स दी हिस्ट्री, तो जितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हैं उसमें कितने सारे फेलियर्स के बाद ही इन्वेंशन सामने आती है. वो इन्वेंशन जब कर रहे होते हैं या वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, तो जब भी वो उनकी एक्सपेक्टेड आउटकम से ऑपोजिट आते हैं तो वो क्या कहते हैं, ओके दैट मीन्स ये वाला काम नहीं करता, ये भी मुझे पता चल गया, नेक्स्ट करते हैं. अगर मेरे पास 10 स्ट्रैटेजीज थी ये काम करने की, 9 डजंट वर्क, तो मुझे 10th पे पता है कि ये तो काम कर जाएगी, राइट? सो वो भी तो एक फीडबैक की तरह देते हैं, तभी वो आगे चलते हैं. सो कोई भी आउटकम है, मुझे रिजिलियंट रहना है, मुझे बार बार एफर्ट करनी है, फौरन खड़े होना है और दोबारा शुरू कर देना. मुझे उसके लिए इफ़ आई लाइक फॉल इन अ सिचुएशन, तो मुझे वहीं नहीं बैठे रहना, आपको भी खड़े होना है और आगे चलना है.
Now what you've done is you're optimistic, you're accepting the outcomes, and you are ready to start up again. अब यहाँ तक जब हम पहुँच गए हैं तो हमें क्या करना है, हमें ग्रेटफुलनेस की तरफ जाना है. द फोर्थ स्ट्रैटेजी इज टू बी ग्रेटफुल. ग्रेटफुल क्यों ज़रूरी है? देखिए, मैं जितनी एफर्ट्स कर रही हूँ उनमें से अगर लेट्स सपोज मैंने 10 दफ़ा एफर्ट की है, मैं 3 दफ़ा भी इफ़ आई एम सक्सेसफुल, तो आई हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट दोज 3 थिंग्स. हमारा आदत क्या होती है, देखा मैंने 10 दफ़ा ट्राई किया था, 7 दफ़ा तो मैं नहीं कर सकी. इंस्टेड ऑफ दैट बी ग्रेटफुल अबाउट द 3 times यू वर सक्सेसफुल. मेक योर ग्रैटिट्यूड लिस्ट. इन दैट लिस्ट आप 2 तरह से लिखेंगे. Every positive thing that you have, every positive thought that you have, and every effort that you made and it was successful. आपने वो सारी चीज़ों को लिस्ट डाउन करना है into a gratitude journal and you'll do it daily. जब भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे या आपको सेल्फ रिपीटिंग थॉट्स आएंगे, देखा मुझे तो फलाने वक्त भी मैं नहीं कर सका था, उस टाइम भी नहीं किया था, स्टॉप, थिंक फॉर अ वाइल, कौन सी सिचुएशंस में कर सके थे, एंड बी ग्रेटफुल अबाउट इट कि मैंने ये सिचुएशन में किया था, मैं यहाँ भी पास हुआ था, मैं यहाँ भी हुआ था, यहाँ भी कॉन्फिडेंट था. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस मिलेंगी इन विच यू वर कॉन्फिडेंट, राइट? सो यू हैव टू फोकस ऑन दोज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड यू हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट इट. सो जब जब नेगेटिव थॉट्स आएंगी यू हैव टू आइडेंटिफाई 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, ताकि आपका माइंडसेट फ्लिप हो टुवर्ड्स. हमारी एफर्ट्स क्या है? फ्लिप करना. सो नेगेटिव के बजाय हम पॉजिटिव पे ले जाएंगे, पॉजिटिव सिचुएशंस देखेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को भी बेहतर कर रहे होंगे. एट द सेम टाइम हम अपने मूड को बेहतर कर रहे होंगे और हम ग्रेटफुल हो रहे होंगे, राइट? सो ग्रैटिट्यूड इज इम्पॉर्टेंट. रात को आपके पास बहुत सारी, लाइक जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को रिव्यू करें. रात में आपके पास बहुत सारी थॉट्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी इन विच यू आर ग्रेटफुल अबाउट. वो आपको पॉजिटिव रखेगा, राइट? अब ये पॉजिटिव रहना और कॉन्फिडेंस की तो एक एग्जाम्पल हमने ली है जो हम थ्रू आउट द वीडियो शेयर कर रहे हैं. ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जनरली ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये सबसे पहले तो हमारे कॉन्फिडेंस को ख़राब करती हैं और हमें डिप्रेस कर रही होती हैं. हमारे इर्द गिर्द अगर बुलिंग हो रही होती है या हमें कोई लोग कुछ कह रहे होते हैं, तब भी हम सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को ख़राब कर लेते हैं कि मैं नहीं कर सकती, बस ये जो कह रही हैं यही सही कह रही. इसीलिए हमने एग्जाम्पल वो ली है जो हमें डिप्रेस नहीं करेगी. अगर हम पे कोई कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बुलिंग आ रहे हैं तो उसको बेहतर करेगी, हमारे मूड को बेहतर करेगी, हमारी परफॉर्मेंस अगर बेहतर होगी तो हम ऑटोमेटिकली अच्छा फील करेंगे. तो रात को जब हम रिव्यू करें कि आज मैंने किन किन चीज़ों में मैं कॉन्फिडेंट था, तो क्या होगा कि एक तो हम ग्रेटफुल हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, हमारा बिहेवियर अगले दिन के लिए मोटिवेशन की तरफ जा रहे हैं, हम और अच्छा परफॉर्म करने की तरफ जाएंगे. ग्रेटफुलनेस के बाद जो 4th स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर 5th स्टेप, दैट इज माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस क्या है? मैं कहीं भी बैठी होती हूँ, लेट्स सपोज मैं एक मीटिंग में एंटर हो गई. अब मुझे ये पता है कि मैं पहले इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन अब तो मैंने ये कहा है, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड आई वांट कि मैं इस मीटिंग में अच्छा करूँ. लेकिन मैं क्या करूँगी? वहाँ बैठ के सोचना शुरू हो जाऊँगी. मेरी एक इंटरनल, बजाय इसके कि मैं एक्सटर्नल वर्ल्ड पे फोकस करती कि ये एक नई मीटिंग है, मैं नए माइंडसेट के साथ आ रही हूँ, मैं वहाँ बैठ के सोचूंगी मैं तो पिछली दफ़ा यहाँ आई थी, मुझसे नहीं बोला क्या था, सब लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं, मुझसे तो नहीं होता है, मैं कैसे बोलूँगी, मैं बोलूँगी तो ये लोग क्या सोचेंगे. अब मैं इंटरनल प्रोसेसेस की तरफ चली गई. दैट मीन्स आई एम नॉट माइंडफुल कि ये एक नई सिचुएशन है, अभी तो मैंने परफॉर्म करना है और मैं अच्छा कर सकती हूँ. तो आई हैव टू बी माइंडफुल हेयर बाय अपने इंटरनल प्रोसेसेस और इन थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करना है और अपने माइंड को फोकस करना है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल रियलिटी. आई हैव टू बी ग्राउंडेड, आई हैव टू बी माइंडफुल इन दिस सिचुएशन. वो मैं कैसे कर सकती हूँ? When you're sitting in a situation जहाँ पर आपको mindful होना है, आपको अपने पे काम करना है और ये negative patterns को break करना है. So look around yourself and identify 5 things that you can visualize, 4 things that you can listen or hear to, identify 3 things that you can touch, 2 things that you can smell, 1 thing that you can taste. So जहाँ कहीं भी हैं, shift your focus from your internal thoughts, break the pattern and focus on the external world by involving your 5 senses and be more mindful about the situation. ये आपको और confidence और positivity की तरफ लेकर जाएगा. Last, the 6th step would be humor. देखिए, बहुत सारी situations ऐसी होती हैं जहाँ पर हम we generally say laugh it off, हंस के गुजार दें, हंसी मजाक में चीज़ों को कर दे. ओ माई गॉड आई कैन नॉट डू इट, चलो कोई बात नहीं अगली दफ़ा कर लेंगे, ये क्या हो गया, रादर देन कि मैं रोती रहूँ, मेरे साथ ये कितना बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया. आई कैन जस्ट लाफ इट ऑफ, हंस के
मजाक मजाक में उन चीज़ों को ख़त्म कर दें तो आप पॉजिटिव रहते हैं. Once a person told me कि they were in a situation जहाँ पर लोग उनको ये कह रहे थे कि ये तो बहुत ही बुरा हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया. कहते हैं मैं हंस रहा था उस सिचुएशन के बारे में. अब वो सिचुएशन क्या थी, लोग आ रहे हैं उन्हें अफसोस करने के लिए और उनको बता रहे हैं, क्योंकि एक परेशानी की बात थी कि उनके घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई थी. सो पीपल वर कमिंग एंड टेलिंग देम कि वो ये तो बहुत बुरा हो गया, आपका बड़ा नुकसान हो गया. कहते हैं और मैं क्या कह रहा था, मैंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया कि इंस्टेड में डिप्रेशन में चला जाता क्योंकि वो बहुत बड़ा लॉस था. कहते हैं मैंने कहा देखो ना हमारे घर जो चोर आए उन्होंने सूट पहना हुआ था, वो कैमरे में हमने देखा है, उन्होंने ईयरफोन्स लगाए थे, कितने यो तरह के चोर आए थे, ये था. आई वॉज लाफिंग अबाउट इट कि इट वॉज जस्ट अ मूवी सिचुएशन और ये और वो. एंड हिज लाइक पॉजिटिव इन दिस ह्यूमर actually didn't let him go towards depression. उन्होंने उसको ह्यूमर में ही पूरा ओवरकम किया उसके लिए, क्योंकि अगर डिप्रेशन में जाते तो फिर वो अपने प्रॉब्लम से निकल नहीं पाते, वो ये ना आइडेंटिफाई कर सकते कि अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बिकॉज ही वॉज इन दैट ह्यूमरस स्टेट. वो डिप्रेशन से बच गए और उन्होंने बहुत पॉजिटिवली इस सिचुएशन को हैंडल किया और उन चोरों को पकड़ भी लिया. अदरवाइज वो शायद ऐसा ना कर पाते. सो ह्यूमर is another very important thing जो आपको पॉजिटिव रखता है. अगर आप ह्यूमर के यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो आप एक्चुअली सारी नेगेटिव पे फोकस करने के बजाय पॉजिटिव पे करते हैं. बेसिकली इन 6 स्टेप्स में हम कर क्या रहे हैं, ऑप्टिमिज्म में भी, एक्सेप्टेंस में भी, रेजिलियंस में भी, ग्रैटिट्यूड में भी, माइंडफुलनेस में भी, ह्यूमर में भी. वी आर चेंजिंग द लेंस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. पॉजिटिव लेंस यूटिलाइज करना शुरू किया हुआ है, बार बार थॉट्स को फ्लिप कर रहे हैं. इन 6 के 6 सिचुएशंस में जहाँ जहाँ आपको पॉजिटिव लेंस यूज करना पड़ रहा है हम वो करें. अब देखिए किसी भी सिचुएशन में देयर आर ऑलवेज 2 साइड्स ऑफ द कॉइन, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं. अब ये तो मेरे पे डिपेंड करता है या आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लेंस, कौन सी साइड को फोकस करते हैं. अगर आप नेगेटिव को फोकस करके चल रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है. लेकिन इन सारे प्रोसेसेस में हम क्या दे रहे हैं कि हम बार बार पॉजिटिव लेंस ले लेते हैं. जैसे ही हमें लगता है कि अच्छा ये चीज़ मैं गलत देख रही हूँ, पॉजिटिव लेंस, तो हम सारे के सारे अपने बिहेवियर्स और थॉट्स को पॉजिटिव कर लेते हैं. सो जब मैंने ये सारे एफर्ट्स कर लिए, मैंने डिफाइन किया, एक्सेप्ट किया, मैंने रिफ्लेक्ट किया, एक्सेप्ट किया, डिफाइन किया, डिज़ाइन किया. अब 5th स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, इन सब एफर्ट्स को रिव्यू भी तो करना है ताकि मुझे ये पता चले कि मैं कहाँ जा रही हूँ. प्रोग्रेस को देखना है. मैं अपनी सारी एफर्ट्स को लिस्ट डाउन करती जाऊंगी, एक प्रोग्रेस चार्ट बनाऊंगी, रिव्यू चार्ट होगा कि आज के दिन में मैंने कितनी दफ़ा आई वाज सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ फ्लिपिंग माय थॉट्स, थिंकिंग पॉजिटिव, बिहेविंग पॉजिटिव, क्या क्या आउटकम्स पॉजिटिव आ रहे थे, क्या डिफरेंसेस मेरी लाइफ में आ रहे थे. सो जब जितनी दफ़ा मैं बार बार अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करती रहूँगी वो मुझे मोटिवेट करेगा फर्दर और ज़्यादा बेहतर करने के लिए. क्योंकि अगर मेरी प्रोग्रेस नहीं होगी, मुझे पता नहीं होगा कि मैं एफर्ट्स जो कर रही हूँ वो कामयाब हो रही हैं, तो मैं डीमोटिवेट हो रही होंगी. क्यों? क्योंकि नेचुरली मेरा माइंड क्या करेगा, देखा यहाँ तो नहीं हो सका, यहाँ भी नहीं हो सका, यहाँ भी मैं कुछ नहीं कर सकी. मुझे फोर्सफुली, कॉन्शियसली अपने आप को बार बार दिखाना है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैंने कहाँ कहाँ प्रोग्रेस की है, ताकि मुझे स्ट्रेंथ मिले, मोटिवेशन मिले टुवर्ड्स बीइंग मोर पॉजिटिव. सो इन अ समरी, इन अ नटशेल, हमने क्या किया है, पॉजिटिव लेंस को यूटिलाइज किया है, बार बार अपने माइंडसेट को ब्लैक वुल्फ का खाना रोका है, वहाँ से माइंडसेट को पॉजिटिव की तरफ लाए हैं, रीइंफोर्स किया है पॉजिटिव माइंडसेट को. कैसे किया है, हमने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के साथ किया है. और अगर आप ये स्ट्रैटेजीज यूटिलाइज करते हैं तो ट्रस्ट मी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लोगों की लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करेंगे और अपनी लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करेंगे. बाय द एंड I would just request you all to have that smile on your face, because आपके मुंह पे जब एक छोटी सी स्माइल होती है तो आप नेगेटिव नहीं सोच सकते. Try this. It's a very simple exercise which I want you all to do by the end of this video, and that is slight 20 degrees अपना face lift करके have a broad smile on your face and think as much negative situation as possible. You'll feel कि नहीं आएगी माइंड में. और जब आप सर झुका के मुंह पे बिल्कुल लटका के बहुत सैड से एक्सप्रेशन के साथ पॉजिटिव सोचना चाहेंगे तो आप पॉजिटिव नहीं सोच सकेंगे. सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट और दिस एक्सपीरियंस इज कि अगर हम कॉन्फिडेंटली अपना थोड़ा सा फेस लिफ्ट करके एक स्माइल के साथ चलेंगे
तो हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हम पॉजिटिव सोचेंगे और हमारी स्माइल से, रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट द पावर ऑफ स्माइल इन द बिगिनिंग, हमारी स्माइल से लोगों की लाइफ भी चेंज होगी, हमारी लाइफ भी चेंज होगी. So have a smile, keep smiling, and I'll see you in the next video. That's all for today. If you enjoyed the video, give us a thumbs up. For more information, follow us on our social media. To book an appointment, give us a call. And I would catch you in the future videos. Thank you. Allah Hafiz.